Yes, good afternoon to all. Good morning, sir. Good morning. और हर्षित ये प्रोग्राम कर रहे हो प्रैक्टिकली? Yes, sir. कोई डिफिकल्टी आ रही है? सर वो थोड़ा सा ना बस पंक्चुएशन मार्क्स में थोड़ा सा एरर आता है कभी, वो जो ब्रैकेट्स वगैरह होते हैं ना उसमें। बाकी तो वैसे चलो, एरर से लर्निंग है। अगर एरर आएगा तो अभी लर्निंग होगी। This is the program which is given in your syllabus based on the data visualization. 3 प्रोग्राम दिए हुए हैं हमारे पास that we have to complete. Clear? So today we will focus on one of the program. And I request everyone to keep your camera in the active state. So the today's task is in data visualization. We have to focus on the box plot. यस, किसी ने सुना इसका नाम कभी, इस बॉक्स प्लॉट के बारे में पहले? Yes, I asked a question that anyone has listened the name of box plot? Yes, I request Muskan, Tarunjot, and Arman. So this is my last call that based on the camera. Now I will remove the person whenever I find that the camera is not in the active state. So this is the question that we have for the day, box plot. So my question was there कि किसी ने सुना इसका नाम बॉक्स प्लॉट के बारे में? यस हर्षित, नहीं सर। ठीक है। नहीं सुना बॉक्स प्लॉट? यू कैन सी हियर ऑन द राइट हैंड साइड इन द फिगर द बॉक्स प्लॉट इज शोन हियर. ये जो बॉक्स प्लॉट की पोजीशन है दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है. इट इज इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म. We have two ways we can create the box plot. Either we can represent in the vertical form or we can represent it in the horizontal form. Presently the box plot is lying in the horizontal form. Now we'll start studying. First of all we will focus on that what is a box plot is.
Clear? Till we don't know what is the box plot is, so there is no fun of making the box plot is. Clear? So my last request to Mr. Arman is that please keep your camera in the active state. So let us focus on the box plot. Box plot is the visual representation of statistical 5-number summary of a given data set. Whenever we want to represent certain data with 5 major points, then we make use of the box plot. Now, what are these 5 points are there? I'm repeating this. A box plot is a visual representation of the statistical 5-number summary of the given data set. तो ये 5 points को हम represent करते हैं in the box plot. What are those? You can see here we can represent the minimum number, we can represent the maximum number, we can represent the first quartile, we can represent the median as well as the third quartile using the box plot. So now today is the day of implementation, and I start with one more student. Please leave the class. Thank you very much. So one by one I will check it out at the last 4-5 बच्चे बचेंगे हमारी क्लास में who will be the part of the class. So let us do with one more student. If you are not interested, I am also not interested. Clear? So coming back to the data visualization. So ये 5 points है which we want to basically represent on the data visualization. My question is ये, yes हर्षित आप बताओ बेटा median क्या होता है? What is median is? सर अगर जैसे हमारे पास अगर फर्स्ट क्वार्टाइल है थर्ड क्वार्टाइल है तो उसके मिडिल में जो वैल्यू होगी उसको मीडियन कहते हैं। यार ये फर्स्ट क्वार्टाइल ये तो आपने बड़ा just leave the word first quartile and third quartile and explain the median. सर कोई भी दो वैल्यूज है, जैसे अगर एक हमारे पास पर्टिकुलर सेट है जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू है, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू, उसके मिडिल की जो वैल्यू होगी उसको मीडियन कहते हैं। चलो ओके, यस मुस्कान ह्यूमैनिटीज, यस Sir, median means the middle value, the central tendency of a series. You said the median represents the median value. किस चीज की middle value होती है? Middle value of which thing? Your answer is 101% correct. My question is कि ये median किसको represent करता है? To whom the median represents? Middle value को represent करता है. But वो ये जो middle value होती है किस चीज की middle value होती है? The quartile की middle value शायद. Very good, very good. Last में तो आपने तो इसको बड़ा ही जबरदस्त twist दे दिया है. So that is not the case. Yes, someone else wants to intervene here. Yes, Vanshika. So median means the middle value of the data set when they are arranged in ascending order, and the middle value represent that most of the values lie near to it. For example, if the middle value we get like 50, then most of the value will be near to it, like 45 will be 1, 53 will be like in. So that's it represents. Simple सी बात है, median represent जो हमारे पास given data है, जो given data है उसकी middle value को represent करेगा median. That is what we have in a median is. So first of all, what we do in a median, we arrange the values in a particular order, either in the ascending order or in the descending order, and we say that the middle value is represented by the median value. And similarly, the middle of the first value and the median value is what we have in the first quartile. Means the bifurcation of the first part of up to median, and the bifurcation of the second part is basically we have the third quartile. So these are the 5 values we are saying that is represented by this box plot. So this is the box that represents the data that we have.
सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन. कोई स्टूडेंट हमारी क्लास में से बी सेक्शन से है, 11B से? एनी स्टूडेंट फ्रॉम 11B? आज कोई नहीं है 11B में से कोई? Where the 11B has gone today? वो टूर पे चले गए हैं वो? No WhatsApp message from 11B. So let's know where they have gone. I don't know. So box plot. What is the box plot? Box plot is the visual representation of the statistical 5-number summary of a given data set. जो given data set है उसके ऊपर हम 5 जो parameters हैं इसको represent कर सकते हैं. Minimum value. This value represents the minimum value in box plot. And this value represents the maximum value in the box plot. जो हमारे पास given data है उसकी minimum value, जो given data है उसकी maximum value, जो given data है उसका first quartile, जो given data है उसका third quartile और जो given data है उसका median. These 5 values are represented on the box plot. As you can see in this diagram, the box plot is lying in the horizontal form. ये horizontal form में भी हो सकता है, ये vertical form में भी हो सकता है. Clear? Box plots are very useful as they provide a visual summary of the data, enabling the researchers to quickly identify the mean value, the dispersion of the data set and the signs of skewness. तो ये इन 3-4 पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए we make use of the box plot. ठीक है? So they are basically used by, use कौन करता है इसको? Researcher. Mostly researcher use the box plot. Clear? And this is the basics about the data, this box plot. that ठीक है? डाटा को एनालाइज करने के लिए, डाटा को प्रॉपर वे से, when we have a huge amount of data, तो हम 1 by 1 डाटा को इवेल्युएट नहीं कर सकते, तो उसको हम विजुअली ही रिप्रेजेंट करना चाहेंगे. To represent the data visually and also to analyze the data, researchers make use of the box plot. So mostly the researchers make use of this box plot. So my final request to Mr. Romanpreet, Rajveer Bajwa and Harshita. Already 3 or 4 persons I have removed from the class. Yes, हर्षिता बेटा टाइम पे आया करो आप क्लास में. ठीक है? ऐसे आधा लेक्चर मिस हो जाएगा, क्या फायदा क्लास में आने का? नो, in most of my lectures, no, the first 10 minutes are very crucial. बाद में तो उसकी implementation है. So let's move to the question that we have with regard to the box plot. This is the question that we have. So as you can see here, there are 4 box plots are represented here in the diagram. So we have 4 set of values. ये हमारे पास पहली values है, set of values. ये दूसरी set of values है, ये तीसरी है, ये fourth है. So these 4 set of values we are representing here in this chart with the help of box plot. ठीक है? So then ये क्या है हमारे पास? ये एक हमने वेरिएबल बना लिया है जिसका नाम है हमारे पास box plot underscore data. So this variable contains the all these 4 data set. ये 4 data set जो है इसको लिस्ट की फॉर्म में इस वेरिएबल को असाइन करते हैं. वेरिएबल का नाम है box underscore plot underscore data. जब भी मैंने ये बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करना है तो व्हाट आई विल डू, उसके लिए ये मेथड है हमारे पास plt.boxplot. plt क्या है हमारे पास? यस हर्षित आप बताओ, ये plt क्या चीज है? प्लॉट. हाँ, plt प्लॉट नहीं होगा? नहीं क्या, मेरे को तो समझ नहीं आ रही है आपके आंसर की. plt क्या है बताओ, थोड़ा डिफाइन करो, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं. यस मुस्कान 12F.
अभी किसी ने हैंड रेज किया था अभी. व्हाट इज दिस PLT इज? यस, किसी को भी नहीं पता क्लास में व्हाट इज PLT इज? Only one student is there. Yes, Vanshika. So we have imported matplotlib pyplot as PLT, and boxplot is the function of matplotlib. So plt.boxplot, that's why we have right, because we have imported maxplotlib.pyplot as PLT. तो PLT क्या चीज है भाई? PLT जो हमारे पैकेज और हमारे मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है. यहाँ पे बॉक्स प्लॉट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये लाइब्रेरी में कहाँ पे है, उसको यूज करने के लिए जो मैकेनिज्म है हमारे पास. जब भी हम कोई मेथड यूज करते हैं तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि वो कौन से मॉड्यूल में है, कौन से पैकेज में है. सो फॉर दैट दिस PLT इज हियर. So it's very important that we keep focusing on these points. Now let us move to the this question. Yes, so this is the question I have already plotted on the Jupyter notebook. तो इसको हम फिर से प्लॉट करेंगे. For your clarity point of view, I will just first copy and paste yes, the first 4 rows, first 4 or 5 rows. ठीक है, just to save the time. तो ये जो डाटा मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा कि ये जो 5 लाइन में कोड पड़ा हुआ है, इसमें क्या पड़ा हुआ है? वैल्यू 1 में जो डाटा पड़ा हुआ है, दैट इसको हम बॉक्स प्लॉट करेंगे ऐसे. फिर वैल्यू 2 में जो डाटा पड़ा हुआ है उसको भी बॉक्स प्लॉट करेंगे, 3 में जो पड़ा हुआ है उसको भी, और 4 में जो पड़ा हुआ है. ये 4 डाटा को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. और ये चारों डाटा की मैंने क्या कर दी, एक लिस्ट बना दी और एक नेक्स्ट वेरिएबल को मैंने असाइन कर दिया, जिस वेरिएबल का नाम है बॉक्स अंडरस्कोर प्लॉट अंडरस्कोर डाटा. सभी 4 डाटा को एक लिस्ट बना के एक नए वेरिएबल को असाइन कर. ये सारे डाटा को हमने बॉक्स प्लॉट से रिप्रेजेंट करना है, ये इसका मीनिंग है. नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, अब मैं क्या करना चाहता हूं, PLT डॉट बॉक्स प्लॉट, ये मेरे पास मेथड है. इस मेथड को मैं यूज करके बॉक्स प्लॉट क्रिएट करूंगा. और जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज बॉक्स अंडरस्कोर प्लॉट अंडरस्कोर डाटा. ये जो वेरिएबल है ये 4 सीरीज को, चार डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक को नहीं कर रहा, 4 को कर रहा है ये वेरिएबल, बिकॉज इट इज कंटेनिंग ए लिस्ट एंड लिस्ट इज कंटेनिंग दिस 4 डाटा सेट्स. जस्ट रन दिस वन. तो इस तरह का मेरे पास जो बॉक्स प्लॉट है वो बन जाएगा. अभी हम बॉक्स प्लॉट के ऊपर ही फोकस करते हैं. ठीक है, अभी जो इसमें मिसिंग है, एक तो ये इसके अंदर ये जो 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 की 4 की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 1 जो है वो वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट करता है, 2 जो है वैल्यू 2 को रिप्रेजेंट करता है, 3 वैल्यू 3 को करता है, 4 वैल्यू 4 को करता है. तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को प्रोग्राम में सेट करने पड़ेंगे लेबल्स. तो सबसे पहले हम लेबल्स एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं. लेबल्स इज इक्वल टू जो भी आप लेबल रखना चाहते हो, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड वैल्यू. इसको एक बार रन करके देख लेते हैं. एंड यू सी हियर these labels have just appeared in the diagram. Clear है ये बेटा? Yes, Harshit.
यस सर। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 1 में मैंने किया कि बॉक्स प्लॉट के अंदर सबसे पहले डाटा डाल दिया। तो डाटा डालने से क्या हुआ, ये सारे मेरे पास ये बॉक्स प्लॉट बन गए मेरे पास। दूसरा मैंने पैरामीटर यूज किया, ये लेबल्स पैरामीटर यूज किया, तो इससे मेरे ये सारे जो है लेबल क्रिएट हो। ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, थर्ड पैरामीटर में अब मेरे पास कोई और काम नहीं बचा, एक ही काम बच गया मेरे पास कि मैं अब इस बॉक्स प्लॉट की कलरिंग करना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस बॉक्स प्लॉट की कलरिंग करने के लिए मेरे पास कोई कलर पैरामीटर नहीं है। इस बॉक्स प्लॉट मेथड के अंदर, बॉक्स प्लॉट मेथड के अंदर कोई भी कलर पैरामीटर नहीं है, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली असाइन द कलर टू डिफरेंट प्लॉट्स। क्लियर है वंशिका? देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, मैं अब ये जो बॉक्स प्लॉट है इनको कलर करना चाहता हूं। अब कलर करने के लिए मेरे पास ये जो मेथड है बॉक्स प्लॉट मेथड, इसके अंदर कलर एट्रीब्यूट है ही नहीं है, तो आई कैन नॉट असाइन कलर डायरेक्टली टू दी डिफरेंट बॉक्सेस। तो उसके लिए जो मैकेनिज्म सजेस्ट किया है एग्जाम्पल के अंदर, एक हमारे पास पैरामीटर होता है पैच आर्टिस्ट इक्वल टू ट्रू। क्या है पैरामीटर, कॉमा पैच अंडरस्कोर आर्टिस्ट, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, मैंने इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, ये जो बाय डिफॉल्ट कलर है ये सभी को असाइन हो गया। अब मैं सबका ये कलर चेंज करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू हैव दी ब्लू कलर फॉर ऑल दी वंस, आई वांट डिफरेंट कलर्स फॉर द डिफरेंट बॉक्सेस। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले तो मेरे को ये 4 तरह के कलर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लेट्स से मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, कॉपी फ्रॉम हेयर एंड पेस्टेड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो मैंने एक कलर्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर 4 कलर असाइन कर दिए। दीज आर दी 4 कलर्स दैट वी हैव। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मैंने एक लूप रन करूंगा। सो ये जो लास्ट 3 लाइंस का कोड है, दिस इज जस्ट टू क्रिएट द कलर जोन। ठीक है, तो मैंने एक लूप लगाई है जिसके अंदर 2 पैरामीटर हैं, पैच एंड कलर। पैच आपको पता है, पैच का वर्ड मीनिंग है जैसे हम कोई कलर करते हैं तो पैचिंग करते हैं जो, ठीक है, जब हम घर पे कोई कलर करवाते हैं तो वो पैचिंग करवाते हैं, उस मैकेनिज्म को पैच बोलते हैं, पैच। दूसरा है इसका पैरामीटर है कलर। एक मैंने जिप मेथड यूज किया है, जिप का मतलब होता है 2 चीजों को कंबाइन करना। तो एक तो मैं यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया बॉक्स। ये बॉक्स प्लॉट का जो भी रिजल्ट आ रहा है मैंने ये बॉक्स वेरिएबल को असाइन कर दिया। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या कर दिया असाइन, जिप में डाल दिया बॉक्स एंड कलर्स। ये जो कलर्स अभी मैंने कलर्स वेरिएबल क्रिएट किया वो कलर्स डाल दिया और एक बॉक्स वेरिएबल डाल दिया। और फिर हमारे पास एक मेथड होता है सेट अंडरस्कोर फेस कलर। उससे मैंने जो भी ये कलर है, पहला कलर ये सेट हो जाएगा, फिर लाइट ब्लू सेट हो जाएगा, फिर ये कलर सेट हो जाएगा, फिर टैन कलर सेट। सो इसको रन करके देखते हैं एक बार। नाउ यू सी दिस। तो अब जो फाइनली आपका बॉक्स प्लॉट है वो इस तरह का बन जाएगा। अब थोड़ा सा अगर हम बॉक्स ये जो बॉक्सेस के ऊपर थोड़ा फोकस कर लें, आप में से कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर कर सकता है कि ये सारे जो बॉक्स बन के आए हैं ये एक तरह के बॉक्स क्यों नहीं बन गए हैं, ये सारे बॉक्स को छोटा बड़ा ये ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है आप में से?
look at the boxes, analyze the boxes with respect to data, and why these boxes are of different types, why they are not of same type. सर क्योंकि हर वैल्यू में मतलब कि अलग अलग वैल्यू डाटा अलग अलग। हाँ, क्योंकि हमारे पास ये देखो, ये जो पहला बॉक्स प्लॉट है ये वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दूसरा बॉक्स प्लॉट है ये वैल्यू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो थर्ड है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो फोर्थ है वो उसको कर रहा है। अब सबसे पहले आप ये फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला जो फोर्थ बॉक्स प्लॉट है ये, अब इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 99, ये देखो 100 के आसपास है, और इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, यू सी हियर, इसकी मिनिमम वैल्यू है ये 16, नहीं 16 है इसमें, ये नाउ व्हाट इज हियर इज कि इसमें जो वैल्यूज हैं वो सारी आसपास हैं, मींस वो स्कैटर्ड नहीं है इतनी, वैल्यू 4 के अंदर ये वैल्यू 4 ही है, ठीक है। ये इसमें डॉट डॉट करके ये ऐसे मेंशन किया हुआ है, ये डॉट डॉट का क्या मीनिंग होता है, ये डॉट डॉट में बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये मिनिमम सर वैल्यू। 10 है मिनिमम वैल्यू, हाँ जी, 10 है मिनिमम वैल्यू। हाँ चलो 10 ले लेते हैं, जैसे 16 है ये 10 भी है, ओके इट्स फाइन। तो ये सारा वैल्यूज इसमें क्या है, वैल्यू जो है मोस्टली दी वैल्यूज आर 99 से लेके 87 के बीच में है मोस्टली वैल्यूज, सो दैट्स वी हैव ए वेरी नो दिस, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की है। जो वैल्यू 3 में देखो, वैल्यू 3 में क्या है, थोड़ी वैल्यू स्कैटर्ड है, इसमें 23 है, लोअर वैल्यूज भी काफी हैं और बड़ी वैल्यूज भी हैं इसमें 89, 78, 72 लाइक दिस, तो इस तरह के ये डाटा को रिप्रेजेंट कर। वैल्यू 2 में देखो, वैल्यू 2 में ये मिनिमम वैल्यू भी है 5, मैक्सिमम वैल्यू भी है, और इसमें ज्यादा स्कैटर्ड वैल्यू, वैल्यू 2 में जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा स्कैटर्ड। ये जो बीच में ये जो कलरफुल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मीडियन को रिप्रेजेंट कर रही है। वैल्यू 4 में ये मीडियन वैल्यू है, यहाँ पे ये मीडियन वैल्यू है, यहाँ पे ये मीडियन वैल्यू, और यहाँ पे। तो डाटा हमारा किस तरह का है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन ए बेटर वे विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। तो ये हमने डाटा को एनालाइज नहीं करना, हमने नहीं ये डिफाइन करना कि ये बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ये मिनिमम को क्यों नहीं टच कर रहा, तो ये मिनिमम को इसलिए टच नहीं कर रहा क्योंकि इसमें ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे पड़ी हुई है। ये डॉट डॉट जो है ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बॉक्स प्लॉट यहाँ पे नहीं खत्म हो रहा है, ये आगे कंटिन्यूड है, ठीक है। तो इसलिए ये डॉट डॉट आ रही है। इसमें से अगर आप वैल्यू 4 में से मैं ये 10 की जगह 10 को रिमूव कर देता हूं, 10 की जगह मैंने डाल दिया लेट्स से 88, 16 की जगह मैंने डाल दिया 75, नाउ यू सी हियर ये डॉट डॉट गायब होगी यहां से। ये डॉट डॉट किस लिए गायब हो गई, क्योंकि अब इसके अंदर मिनिमम वैल्यू यही है और मैक्सिमम वैल्यू यही है। ये डॉट डॉट का मीनिंग था कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं है, वो बेसिकली इसके नीचे है, यहाँ पे बनी। तो अगर आप इसके अंदर मिनिमम वैल्यू ऐसे डाल दोगे 88 की जगह, अगर आप यहाँ पे 5 डाल दोगे और लेट्स से ये 70 की जगह आपने डाल दिया 10 डाल दिया, अगर आप इसको रन करोगे तो इसकी फिगर वैसी रहेगी, ऑलमोस्ट वैसी है, बिल्कुल सेम नहीं है, बट ये डॉट डॉट नीचे आ जाएंगे। तो ये डॉट डॉट बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये डॉट डॉट मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर, बिकॉज इसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं है, वो 5 है। तो इसने लंबी लाइन ड्रॉ करने की जगह वहां पे क्या कर दिया, ये डॉट डॉट ड्रॉ कर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर able to analyze the box plot appropriately। और जो इसके अंदर जो हमने लास्ट में काम किया है अपने बॉक्स प्लॉट के अंदर, ये जो लास्ट 3 लाइंस का कोड लिखा है, 2 लाइंस ये और एक ये कलर वाला, तो ये कलरिंग करने के लिए हमने किया है। अगर आपको कलरिंग, अगर आप इसको कमेंट कर दो, ये कलर्स को भी कमेंट कर दो, और ये जो बॉक्स प्लॉट है ये बॉक्स वेरिएबल को खत्म कर दो, ये अब रिक्वायर्ड नहीं। आप इसको रन करोगे तो आपके पास सिंपल बॉक्स प्लॉट बन जाएगा।
और अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर कलर आपको चाहिए, तो कलर करने के लिए ये जो रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को मैंने एक बॉक्स वेरिएबल को असाइन कर दिया, यहाँ पे कलर्स को अनकमेंट कर दिया, और फॉर लूप को भी मैंने अनकमेंट कर दिया। like this is the box plot। ठीक है, आप एक दो बार इसको बेटा, दो चार बार, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि अगर आप इन चीजों को रन करके नहीं देखोगे, ये दो दो बार तो मैं खुद रन करके देखता हूँ इसको। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बार यहाँ पे देखूंगा, पैच मेरे को याद हो जाएगा, सेट कलर पता चल जाएगा, ये सेट कलर किस लिए होता है, ये जो सेट फेस कलर होता है, ये वाले कलर को चेंज करने के लिए ये मेथड है हमारे पास, सेट अंडरस्कोर फेस कलर, और ये पैच का पार्ट है ये। ठीक है, और कलर, ये जो है कलर पैरामीटर, ये मैंने कहां से लिया, ये यहां से लिया, ये जो कलर्स है। ठीक है, ये मेरे पास कलर्स जो वेरिएबल है, ये वो वाला कलर्स है, और ये कलर किसको है, जो पैच के बाय डिफॉल्ट कलर को एक्सेप्ट करता है। ये बिल्ट इन पैरामीटर है, ये कलर बिल्ट इन है, ये पैच बिल्ट इन है, बट ये कलर्स कौन सा है, ये वाला कलर्स है जो ये वेरिएबल है। ठीक है, आप इसका नाम एबीसी कर दो, और यहां पे भी एबीसी कर दो, तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये COLORS, ये कलर्स का मीनिंग डिफरेंट है, और ये जो कलर यहां पे यूज किया है, ये डिफरेंट है। ये दोनों पैच और कलर, ये क्या है, ये दोनों कंट्रोल वेरिएबल हैं। और ये बॉक्स को भी बता सकता है, ये बॉक्स कौन सा है, ये जो बॉक्स वेरिएबल है, ये वाला बॉक्स है। ये जो PLT और ये सारी इसकी जो वैल्यू आएगी, ये इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, बॉक्स वेरिएबल। तो ये बॉक्स के बॉक्सेस को एक्सेस करने के लिए वी मेक यूज ऑफ दिस बॉक्स वेरिएबल। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके दिखाऊं आपको, फिर से दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। अगर मैं इसमें से ये कलर्स को डिलीट कर दूं, ठीक है, और ये बॉक्स को भी डिलीट कर दूं, और इसमें से एक और वेरिएबल है यहाँ पे पैच आर्टिस्ट, अगर मैं पैच आर्टिस्ट को भी रिमूव कर दूं, तो क्या बनेगा मेरे पास, देखो एक ही लाइन ऑफ कोड है, इसको रन करोगे तो क्या होगा मेरे पास, ये सिंपल बन जाएगा मेरे पास, कलरलेस बॉक्स प्लॉट बन जाएगा। इसको कलर करने के लिए सबसे पहले पैरामीटर हम यूज करते हैं पैच आर्टिस्ट। और पैच आर्टिस्ट की वैल्यू हमने सेट करनी होती है, पैच आर्टिस्ट इक्वल टू ट्रू। तो इतना करने से क्या होता है, इतना करने से ही इसमें कलर फिल हो जाता है, ये बाय डिफॉल्ट कलर है। और बाकी जो कोड मैंने आपको बताया है, ये जो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने यहाँ आपको समझाया है, ये सारा जो नीचे वाला कोड है, ये कलर कोडिंग के लिए है, ये कैसे हमने ये बॉक्स प्लॉट में कलर कैसे फिल कर। कोई आप लोगों की साइड से कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन नहीं है? प्रियांशी? यस सर। बेटा प्रोग्राम्स को रन करके देख रहे हो? यस सर। So your voice says that the very less conviction is there. Yes, Mr. Bajwa. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाजवा, तुम्हारा एक फ्रेंड है दिलबाग, वो नहीं आ रहा क्लास में? पर पता नहीं नेटवर्क नहीं करके नहीं आਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ क्लास लीव हो जाती है आपे ही। अच्छा, ठीक है ठीक है। और आप ये सारे प्रोग्राम कर रहे हो बेटा? सर ये वाले नहीं, पिछले करदा पे हल्ले, ਜਿਹੜੇ पुराने चलो ठीक है, प्रोग्राम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ना कुछ भी ना करने से, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर डूइंग द प्रोग्राम्स. यस रोमनप्रीत सिंह. गुड मॉर्निंग सर. यस गुड मॉर्निंग. रोमनप्रीत कितनी समझ आ रही है इसमें से? सर आ ही गई, मेन पता लग गई. मेन पता लग रहा है, ठीक है. जैसे जैसे फिल्म में ये पता लग गया कि ये हीरो कौन सा है, इतना पता लग गया, बाकी नहीं समझ आ रही कि ये बोल क्या रहे हैं और ये कर क्या रहे हैं फिल्म के अंदर. पहले देखो, पहला स्टेप है कि हम क्लास के अंदर आए. दूसरा स्टेप है, अगर आपको नहीं भी समझ आ रही बेटा, ये पीपीटी पड़ी हुई है, इन पीपीटी को बेटा रन करके देखो, को 10% से 20% पीपीटी रन करके समझ आ जाएगी. फिर उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है, जब मैं नेक्स्ट क्लास लेता हूं तो यू शुड कम इनटू द क्लास, सर ये वाला पैरामीटर थोड़ा सा और समझा. ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर कोई पैरामीटर मेरे को भी नहीं क्लियर है तो वी कैन वर्कआउट और उसके ऊपर थोड़ा एम्फोसिस कर लें. देखो हमारा काम ये नहीं है कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर दें और फ्री होके बैठ जाए. तो ये है कि ये बेसिकली मेरा पर्पस तो ये है कि आप लोगों को समझ आए. मेरे को तो समझ आ ही जाएगी बाय हुक एंड क्रुक. तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी क्लास में आ रहा है बेटा, थोड़ा सा एक लेवल एफर्ट अपनी साइड पे जरूर करो. जब भी आपको टाइम मिलता है प्रोग्राम को, आपके पास सारे टूल हैं, प्रोग्राम तो पड़ा हुआ है आपके पास, कॉपी पेस्ट करके उसको रन करके देखना है ये चलता है या नहीं चलता. अगर नहीं चलता तो क्यों नहीं चलता, और हर एक पैरामीटर को वहां पे डाल के देखो. मैंने ये पैरामीटर डाला तो प्रोग्राम में क्या चेंज हुआ, मैंने लेबल डाला तो क्या हुआ, मैंने पेंट वाला यूज किया तो क्या हुआ, ठीक है, शेडो पैरामीटर यूज किया तो क्या हुआ, ठीक है, एक्सप्लोर पैरामीटर यूज किया तो क्या इफेक्ट हुआ. तो एक एक चीज को वहां पे डाल के देखोगे तो आपको उस चीज का इफेक्ट पता चलेगा प्रोग्राम में, कि इसका काम क्या है प्रोग्राम में. उसको रिमूव करके देखो, उसको प्रोग्राम से बाहर करके देखो, उसको कमेंट कर दो, एंड सी व्हाट आर द चेंजेस आर कमिंग इन दी प्रोग्राम. मैं वैसे आपको 1 by 1 स्टेप करके दिखाता हूं, सो दैट आपको समझ आ जाए कि आपने घर पे इसको कैसे करके देखा. एंड यू हैव ऑल दी टूल्स अवेलेबल विद यू. आपके पास कंप्यूटर भी है, हर चीज अवेलेबल है. एक ही चीज अवेलेबल की थोड़ी कमी है कि इसको करना है या नहीं करना, बाकी चीजें तो सारी हैं हमारे पास. यस हर्षिता. हर्षिता समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो बेटा यस सर वैसे ही ना कर देना कि सर थोड़े खुश हो जाएं. मेरे को थोड़ा आपके फेस से पता चल जाता है कि किसको समझ आ रही है. तो नो, जूम की क्लास का ये बेनिफिट है कि हमें पता चलता रहता है. एंड यू, अगर आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर एफर्ट करो, एंड यू विल बी लर्निंग दिस लाइक, एंड ट्राई टू आस्क क्वेश्चन वेयर एवर यू फाइंड कि हमें चीज नहीं है क्लियर. नाउ यू आर इनटू द सेकंड ईयर, आप दूसरा साल हो गया हमें पढ़ते हुए. सो यू मस्ट आस्क क्वेश्चन व्हेनेवर इट इज रेलेवेंट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आपकी साइड से कोई क्वेश्चन है सो वी कैन टेक इट अप, और अदरवाइज वी विल क्लोज द क्लास. ये बड़ा क्रूशियल स्टेप्स हैं ये सारे, सो प्लीज थोड़ा एफर्ट करो इसको साथ साथ. ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir.